ہندوستان کے بھارت ورش کے لوگوں کو نمسکار کرتا ہوں. سب خوش رہے. آج میں آپ کو سناتا ہوں کہ چناؤ کے بارے میں. ہندوستانی چناؤ، جمہوریت اچھا ہے. جمہوریت کے طور طرز سے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. نواب شاہی نہیں ہے، بادشاہی سلطنت نہیں ہے. یہ خود لوگ اپنی حکومت بناتے ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں، لیکن ایک ووٹ کے پرچے سے رائے دہندگان بناتا ہے اور اپنے ملک کا مستقبل سوچتا ہے. کس اپنے رائے سے. اب پھر کن دہندگانوں کی رائے زیادہ ہے کن کم، لیکن چناؤ کے ذریعے ہی ہم حکومت کو چنتے ہیں اور گراتے بھی ہیں. لیکن اس ہندوستان میں جمہوریت مہاتما گاندھی نے لائی، لیکن ہم نے عیش عشرت کیے، لیکن اس کے نتائج بہت ہی برباد ہو گئے. ایسے برباد ہو گئے کہ پاکستان الگ بن گیا، بنگلہ دیش الگ بن گیا. اسی طرح 2-3 حصے ہو گئے ہندوستان کے. لیکن اب ہمیں سوچنا ہے کہ آئندہ مستقبل میں ہندوستان کا اور مت ٹکڑے ہو جائیں گے. ان ٹکڑوں کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ ترتیب سوچنی ہے تاکہ ہندوستان اور ریاستیں ٹکڑے مت ہو جائیں. اس کے لیے 2 پارٹی سسٹم ہونا چاہیے. 2 پارٹی جس طرح لنڈن میں ہے کنزرویٹو اور لیبر، امریکہ میں بھی لگتا ہے ایسے 2 ہے. انہی سے ہندوستان کی وحدت ایک رہے گی. اس میں ہمیں خوف نہیں رہے گا کہ دوسرا پارٹیشن ہونے والا ہے، دوسرا حصہ لینے والا ہے. اس سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اور ہندوستان کے آئین میں ہمیں یہ درج کرنا ہے کہ 2 پارٹی سسٹم ہونا چاہیے. ہندو انڈیا بھی نہیں لا سکتے ہو، وہ بھی غلط رہے گا. اور کچھ بھی نہیں، صرف 2 پارٹی سسٹم ہونا چاہیے. ان پارٹیوں کا نام بھی مرتب کرنا ہے ان تمام سیاستدانوں کو، ورنہ ہندوستان کے ٹکڑے ہونے والے. اور یہی 2 پارٹی سسٹم جو ہوتے ہیں یہ ریاستوں میں بھی تمام ہندوستان میں اکٹھے رہنے چاہیے. مطلب تامل ناڈو میں بھی، جموں کشمیر میں بھی، دلی میں بھی، جہاں جہاں یہ ریاستی اسمبلیاں ہیں وہاں پر یہ 2 پارٹی سسٹم ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ کچھ، کیونکہ ورنہ ہندوستان کے 2 ٹکڑے ہونے والے ہیں. ہندو انڈیا بھی نہیں بن سکتا ہے، لیکن 2 ٹکڑے ہونے والے ہیں. میں یہ بیان کہوں گا. میں خوش ہوں کہ جب ہندوستان پاکستان جنگ چھڑ گیا تو اس وقت بہت سے مسلمانوں نے مختلف مسلمان ملکوں میں جا کر کہا کہ ہم مسلمان محفوظ ہیں. یہ بہت اچھا ہے. جس طرح راہل گاندھی کی طرح نہیں، وہ جالتا تھا کئی ممالکوں میں، کہتا تھا وہاں مائنارٹی پروڈکشن نہیں ہے، مائنارٹی پروڈکشن. لیکن ہم شکریہ کرتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو جنہوں نے مختلف ودیشی ملکوں میں جا کر، مسلم ممالکوں میں جا کر کہا کہ ہم محفوظ ہیں. ہمیں کوئی کی بات ہوتا ہے کسی وقت زمین و زر پر لڑائی ہوتی ہے، وہ ہمیں دماغ میں نہیں رکھنا ہے کہ ہندو مسلم ہے. اس میں یہ زمین و زر ہوتا ہے فساد. اب میں رہا قوم بہار کے الیکشن پر یہی میں کہہ رہا ہوں. جو بہار کا الیکشن ہے اس میں مختلف ودیشی ممالک کام کرتے ہیں. اس میں ودیشی اور کئی ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے بہت سا پیسہ کمایا ہے اور وہی بلیک منی، کالا دھن اس وقت خرچ کرتے ہیں. اور آپ بہار کے لوگوں، آپ غریب ہو، آپ یہ بھی دیکھو گے کئی بڈھے آئیں گے، ان میں بھی 1,00,000 1.5 روپے. اس میں ہر ایک سیاسی پارٹی، ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں میں ایک ایجنسی ہوتی ہے ریومر کی جو افواہیں پھیلاتی ہے، دوسری ایجنسی جو گڑبڑ کرتی ہے، تیسری ایجنسی ہے پیسے بانٹنے کا. جس طرح
एक कई पार्टियों वालों ने रखा है, कई नौजवान साथ साथ वो बूढ़े को रखेंगे, माला पहन के कहेंगे मैंने लालू देना है, लालू आसान। वो नहीं सोचेगा ये गरीबों के खिलाफ है, लेकिन उसको पैसे मिलेंगे, शराब बोतल मिलेगी और ठिम ठिम पर चलाएंगे नौजवान जिनको पैसे दिए होंगे पार्टी वालों ने, वो ठिम। ऐसे सूरत में वोटर को सोचना, बिहार के वोटर को मुझे मुस्तकम इरादा करना है कि मुझे एनडीए को वोट देना है, क्योंकि हिंदुस्तान की वहदत मुझे सोचना है, मुझे एनडीए को वोट देना है। खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, एनडीए को जिताना है। मुझे उसी से अपना मुल्क का, अपने सियासत का मुस्तकबिल खुश रहेगा और मेरी इक्तिसादी हालत भी खुश रहेगी। वरना कई ममालिक, विदेशी ममालिक इस वक्त सियासी ग्रुप को इकट्ठा बनाने के लिए, फेम मशहूरी बनाने के लिए पैसे खर्च करेंगे ताकि सियासी ग्रुप उसका या किसी सियासी ग्रुप का मतलब जीत हो जाए तरीके से, जिससे कि उस सियासी पार्टी का मुस्तकबिल हिंदुस्तान में बरकरार रहे। उस पर भी कई विदेशी ममालिक पैसे खर्च करेंगे, उस पर भी कई गुंडागर्दी, कई रुपये होंगे और कई विदेशी मुल्कों से पैसे नहीं लाएंगे, वो कई दुकानदारों से डोनेशन मांगेंगे और कईयों को काला धन है, कईयों ने, जिस तरह लालू प्रसाद ने करोड़ों रुपया खाया है, अब इस वक्त बच्चे के लिए खर्च करता है, करोड़ रुपये निकालेगा रूमरों के लिए। कई इसके लिए होश हवा करना है हिंदुस्तानी वोटर को। हिंदुस्तानी, खा वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको सोचना चाहिए मुझे रियासत का, बिहार का मुस्तकबिल कैसे खुश रहेगा, कैसे मैं अमीर बनाऊँ, कैसे मैं आगे के बच्चों का मुस्तकबिल ठीक रहेगा। इस एक वोटरों को ये समझना एनडीए अच्छी है, एनडीए पार्टी अच्छी है, खा वो बीजेपी है कुछ, लेकिन एनडीए के फेवर में जिसको देना हो, किसी के फेवर में जिसको देना है, उसको बिल्कुल सोचना चाहिए, इनमें डरना नहीं है। कहीं आपको रास्ते में आएंगे वो अफवाहबाज होंगे, उनमें डफली होगी, वो कहेंगे लालू जी, कहीं डफली वाले वो इस पार्टी को, कहीं डफली वाले से आपका दिमाग मुंतशर करेंगे। आपको मुंतशर नहीं होना चाहिए, आपको बिहार के वोटर को सोचना चाहिए मुझे कैसे मुस्तकबिल रियासत का अच्छा रहेगा। नीतीश जी की वर्क मैंने काम देखा, अच्छा रहा, इसने कोई दूसरे वजीर आलम की तरह मुख्यमंत्री के पैसे नहीं खाया। देखो ये क्यों चुनाव में नहीं लड़ता है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है। इसमें कम से कम 20-25 लाख रुपए खर्च होता है और इस अगरचे खर्च चुनाव कमिश्नर बर्दाश्त करता है, लेकिन फिर भी अपने जेब से लाख, 1.5 लाख, 4 लाख रुपए, लेकिन इसीलिए वो दूसरे लेजिस्लेटिव काउंसिल से मुंतखब होता है, फिर वजीर आला बनता है, मुख्यमंत्री बनता, क्योंकि पैसे नहीं है। इसमें बहुत से पैसे खर्च होते हैं। अगरचे चुनाव कमीशन पैसे देता है इस मुहिम को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी वो कम है, फिर भी वो हर एक उम्मीदवार के लिए वो अपने जेब से पैसे खर्च करते। इसीलिए इसमें विदेशी ममालिक भी खर्च करते हैं, ब्लैक काला धन भी होता है। इसलिए बिहार के लोगों अपना मुस्तकबिल सोचो कि मेरा मुस्तकबिल एनडीए अच्छा है, एनडीए पार्टी मेरा मुस्तकबिल वही ठीक करेगा। यही नहीं कहना है आपको सब्ज़ बाग दिखाएंगे कहीं, वो नहीं। आपको हिंदू, मुसलमान, सिख जो बिहार का हो, मुझे खुद गुरबत पता है गरीब क्या है, और आपको एनडीए का मुस्तकबिल कामयाब रखना है। मैं फिर भी, क्योंकि आपको गुमराह नहीं होना चाहिए, रास्ते में कहीं डफलियाँ होंगी, रास्ते में कहीं अफवाहबाज भी होंगे। आपको मुकम्मल इरादा रखना है कि मुझे एनडीए को देना है, दे दूँगा, और कुछ भी हो जाए, और इससे आपका मुस्तकबिल सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये नहीं सोचना बहुत पैसे खर्च। इसीलिए मैंने मुरार जी को भी एक दिन को उसने मान लिया था, कहा कि मेरी वजारत है नहीं, आपने अच्छा मशवरा। मैंने कहा हिंदुस्तान में 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए, रियासती सतह से लेकर मरकजी सतह तक। उससे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल ख़राब नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे, रियासतों के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे। जो 2 पार्टी सिस्टम हिंदुस्तान में रहेगा,
हिंदू इंडिया नहीं ला सकते हो। ये हमें सोचना है, 2 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी। आइंदा के लिए अगर मोदी जी ऐसी का या कोई पार्टी ऐसा, वो अच्छा रहेगा। बाकी ये अच्छा नहीं। विदेशी ममालिक इस वक्त बहुत पैसा खर्च करते हैं कि अपना उनका सियासी टोला मुस्तकबिल में अच्छा रहना चाहिए। कहीं कम्युनिस्ट पार्टी वाले, कई पार्टी, इसीलिए आपको सोचना चाहिए, हिंदुस्तान के वोटर को, खासकर बिहार के वोटर को इस वक्त सोचना चाहिए, मुझे अपना मुस्तकबिल एनडीए के साथ अच्छा रहेगा। मुझे विदेशी ममालिकों के एजेंसियों को दबाना है, मुझे ब्लैक मनी खर्च करने वाले को दबाना है। इसीलिए मेरा मुस्तकबिल एनडीए अच्छा है। मतलब नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी और जितनी उनके साथ पार्टियां हैं, वो अच्छा है बिहार के मतदाता के लिए। खैर, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे मशवरे के मुताबिक, मैंने पहले भी कहा, ये जो मुख्यमंत्री यूपी का, इसको क्या कहा इसने, हकारत की इसको, ये गरीब है, साधु जी गरीब है। ये ऐसा कहना चाहिए? आप ही सोचो, क्या ये शोभा देता है उसके बच्चे को मुख्यमंत्री बनने का? इसी तरह से राहुल गांधी का सोचो। मुसलमान हिंदुस्तान का जाता है तमाम मुस्लिम ममालिकों में कि कहते हैं हम महफूज है, हमें कोई सताव नहीं है। जब जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान छिड़ गया तो तमाम मुसलमान ममालिकों में कई हिंदुस्तान के मुसलमान रहनुमा गए और सही कहा, गलत नहीं कहा। अगर इस राहुल गांधी को कहेंगे, ये कहता है नहीं, वहाँ महफूज नहीं है माइनॉरिटी। देखा, अब झगड़ा होता है। देखो, ये मौलवी घर का झगड़ा है, मौलवी साहब ने, वो ब्राह्मण ने ऐसा किया। इस झगड़े को निपटाना है हमें अपने घर में ही। जिस तरह 2 भाइयों की लड़ाई होती है, फिर समझौता करते हैं, हमसाया समझौता करते हैं अपने महल्ले में, फिर समझौता होता है, लेकिन लड़ाई करने नहीं देते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान की भी सियासी हालत है। जय हिंद, जय भारत।